Hello Studiesians, we will see how to solve pedigree with a few examples in this video. So let's start. This is our first example. We have to analyze this pedigree and answer the following questions. First question is, identify the nature of the trait represented in the pedigree. तो हमें पता लगाना है कि कौन सा trait है, recessive या dominant या autosomal recessive या autosomal dominant. Now, अगर हम पहले बात करें dominant है या recessive है. Dominant trait स्किप नहीं करेगा जनरेशंस. अगर स्किप कर देता है तो वो आगे किसी भी जनरेशन में नहीं दिखेगा. सो it is missing in second generation, so we can conclude that this is recessive. Now it is autosomal, X-linked और Y-linked. Y-linked नहीं हो सकता because Y-linked फादर से सारे सन्स में आता है, लेकिन यहाँ पे स्किप कर दिया, नहीं आ रहा किसी भी सन में, तो Y-linked नहीं है. नाउ X-linked पे बात करते हैं. X-linked recessive की बात करें तो father has to be affected if it passes the trait to the next generation, but here father is not affected, so we can conclude that it is not X-linked recessive. Now it is autosomal recessive. The second question is, predict the genotype of 3 and 4 in second generation. 3 and 4, these both are not affected, but their children, both male and females, are affected, which means both of the parents are heterozygous carrier. Both of the parents are heterozygous carrier. Now, what do 2 of second generation and 5 and 6 of third generation represent? So 2 of second generation is unidentified. This symbol is for unidentified individuals. And 5 and 6 represents the identical twins. Yes, this is all about this example. Let's move to the next. So the first question is again the same. We have to identify the trait. सबसे पहले तो डोमिनेंट है या रिसेसिव है वो चेक करते हैं. डोमिनेंट में ट्रेट जनरेशन स्किप नहीं करेगा और रिसेसिव में करेगा. यहाँ पे नहीं कर रहा, which means it is dominant. So let's see, it is X-linked dominant और autosomal dominant. अगर X-linked होता तो फीमेल अफेक्टेड नहीं होती, it should be only carrier, but male and female both are affected, so it is autosomal. Now we can say it is autosomal dominant as it is not skipping generation and appear with equal frequencies in both males and females. Now it is autosomal dominant, we can say, as the affected person has affected parents. Like second generation में first and 7 affected है because first generation उनकी male affected था. Third generation में second, third and 11 affected है because second generation में 1 and 7 affected थे. So we can conclude that affected person has affected parents, which means it is autosomal dominant. Now the second question is, if we predict the genotypes of 1 in first generation and 1 and 7 in second generation, then first will be heterozygous, like this A. अगर ये homozygous होता, homozygous dominant A, तो इसके सारी प्रोजेनीज अफेक्टेड होती, बट सारी प्रोजेनीज अफेक्टेड नहीं है, which means it is heterozygous. And if we talk about first and 7 in second generation, then first and 7 अगर ये भी homozygous होता तो इसकी सारी प्रोजेनीज ये एंड ये अफेक्टेड होती, बट सारी प्रोजेनीज नहीं है, कुछ प्रोजेनीज ही हैं दोनों की, which means it is also not homozygous dominant, it is also heterozygous. So yes, let's move to the next. So the following pedigree is for myopia, that is nearsightedness in humans. So we have to analyze it and let's find the answers. The first question is, identify the nature of the trait represented in the pedigree. तो हमें पता लगाना है पहले. Let's see, it is dominant or recessive. यहाँ पे second generation में ये trait generation skip कर रहा है, which means it is not dominant, means ये recessive है. Next thing, autosomal है या X-linked है. अगर X-linked होता तो affected daughter would have been born to affected father. यहाँ affected father से यहाँ पे ये trait आता, but यहाँ पे नहीं है. So it is autosomal
as it appears with equal frequencies in both males and females, and affected children are born to unaffected parents. Like second generation के जो parents हैं 3 and 4, these both are unaffected, but their progeny number 2 is affected, which means these both were carriers. We can say that it is autosomal recessive, and we proved it. The second, predict the genotype of 1 and 2 in first generation. 1 and 2. We can say that one is homozygous recessive, A, A, small a, small a, homozygous recessive, and क्योंकि अगर ये homozygous dominant होता तो इसके सारी प्रोजेनिस में हमें ये ट्रेड देखने को मिलता, लेकिन हमें सारी प्रोजेनिस में ट्रेड देखने को नहीं मिल रहा, which means it is recessive and this unaffected parent is dominant, heterozygous dominant. Heterozygous is always dominant, yes. So the next question is predict the genotype of 1 and 2 in first generation. हमें इसका और इसका जीनोटाइप बताना है कि होमोजाइगस हो सकता है या हेट्रोजाइगस हो सकता है. तो फर्स्ट की बात करें, पहले इनकी प्रोजेनिस को अगर हम देखें, सेकेंड जनरेशन में 1, 2 एंड 3 को देखें तो इसमें कोई भी अफेक्टेड नहीं है, विच मीन्स जो अफेक्टेड ट्रेट है वो रिसेसिव है, राइट. एंड जनरेशन स्किप कर रहा है तो रिसेसिव है ही. अब हमें पता लगाना है होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है. अगर हेट्रोजाइगस होता तो इनमें से कोई एक प्रोजेनी में अफेक्टेड ट्रेट हमें दिखता, लेकिन कोई भी नहीं है, विच मीन्स इट इज होमोजाइगस. एंड नीचे सारे प्रोजेनीज अनअफेक्टेड है, विच मीन्स जो अनअफेक्टेड पेरेंट था वो नॉर्मल पेरेंट जो था वो डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है, एंड thus first of first generation is homozygous and second one is heterozygous. And the next question is, what does 2 of third generation represent? This one, what does it represent? It has born to unaffected parents, normal parents. Both of them would be carrier certainly, as the progeny is affected. So affected children are born to unaffected parents. Yes. And the next one is, हमें यहाँ पे फिर से ट्रेट पता लगाना है. पहले देखते हैं रिसेसिव है या डोमिनेंट है. जनरेशन स्किप कर दी, पूरी जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड ट्रेट नहीं शो हो रहा, विच मीन्स इट इज रिसेसिव एंड नॉट डोमिनेंट. वी कैन जस्टिफाई इट एज it appears with equal frequencies in both male and females, like female, male here, yes. And affected children are born to unaffected parents, like this 4 number progeny in third generation is born to unaffected parents. 4 and 5 both are unaffected, but they would certainly be a carrier. Now the second question is, predict the genotype of 1, 3 and 4 in first generation, 4 and 5 in second generation. This one would be a heterozygous, which means it would be a carrier, as 1 and 3 number progeny is affected. अगर ये heterozygous नहीं होता तो हमें सारे के सारे 1, 2, 3, 4 सेकेंड जनरेशन के सारे प्रोजेनीज इन पेरेंट्स के अफेक्टेड मिलते, लेकिन 50% अफेक्टेड है एंड 50% नॉर्मल है, विच मीन्स इट इज हेट्रोजाइगस. A, this one. Now 4 and 5 of second generation, these two, as the progeny is affected, which means this 4 number and 5 number parent certainly be carriers. Both are carriers, right? Now the third question is, what do you expect about the genotype of fourth generation and why? तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये इनमें से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, फोर्थ जनरेशन की कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं है, विच मीन्स जो नॉर्मल पेरेंट था वो उसका डोमिनेंट जीनोटाइप है. मीन्स अगर 6 नंबर हेट्रोजाइगस होता तो बट 50% प्रोजेनीज अफेक्टेड मिलती, बट ऐसा नहीं है. सो यस, we can say that all of them would be carrier, as normal parent has dominant genotype.
and affected parent is homozygous. Let's move on to the next. So let's analyze this one. सबसे पहले तो हमें ट्रेट पता लगाना है, ठीक है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है. यहाँ पे सॉरी थर्ड जनरेशन में ट्रेट स्किप हो गया, इसका मतलब है यहाँ से भी फोर्थ जनरेशन में ट्रेट स्किप हो गया, विच मीन्स इट इज रिसेसिव. क्लियर. अब हम ये देखेंगे कि ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है. अगर ऑटोसोमल होता तो मेल और फीमेल्स दोनों में ये ट्रेट हमें दिखता, लेकिन ओनली मेल्स में हमें ये ट्रेट दिख रहा है, विच मीन्स इट इज एक्स लिंक्ड, जिसमें मेल्स आर मोर अफेक्टेड. मेल्स एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर एक्स अफेक्टेड है तो मेल अफेक्टेड होगा. यहाँ पे कैरियर का कोई चांस नहीं है, वो कैरियर मेल एक्स लिंक्ड कैरियर नहीं हो सकता, वो डायरेक्टली अफेक्टेड होगा. एंड नाउ दिस ट्रेट डज नॉट मूव फ्रॉम फादर टू सन. यहाँ पे फादर अफेक्टेड नहीं है, सन है. फादर अफेक्टेड है, सन नहीं है, विच मीन्स ये फादर से सन में अफेक्टेड ट्रेट मूव नहीं करता. नेक्स्ट थिंग इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट shows क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हम किसे बोलेंगे, जैसे ये मेल है और ये फीमेल है, जो मेल है वो अफेक्टेड है, यहाँ से प्रोजेनीज आई, मेल फीमेल फीमेल. यहाँ पे जो फीमेल है वो अफेक्टेड नहीं है. वेट अ मिनट, फीमेल अफेक्टेड नहीं है. फिर इसकी मैरिज लाइन देखें तो यहाँ पे अगर हमें फिर से अफेक्टेड ट्रेट सन में शो हो जाता है, फिर से अफेक्टेड ट्रेट अगर हमें सन में शो हो जाता है, तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है. मींस फादर ने डॉटर को कैरियर बनाया, मींस डॉटर इज अ कैरियर टू दैट पर्टिकुलर ट्रेट, एंड फादर सन में पास नहीं करेंगे उस ट्रेट को. मदर से सन में पास होगा ट्रेट, फादर से सन में नहीं होगा, फादर से सन में नहीं होगा, मदर से सन में होगा, और फादर की डॉटर जो होगी may or may not be a carrier. So this X-linked recessive trait shows criss-cross inheritance. यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि थर्ड का 1 and 2. यहाँ पे मेल अफेक्टेड है लेकिन कोई भी सन अफेक्टेड नहीं है. नेक्स्ट इज यहाँ पे मदर अफेक्टेड नहीं है, फादर भी अफेक्टेड नहीं है, नॉर्मल है, बट यहाँ पे सन अफेक्टेड है, मतलब मदर इज सर्टेनली गोइंग टू बी अ कैरियर. कैरियर कहाँ से है, बिकॉज इनके जो फादर थे वो अफेक्टेड थे. यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट एंड सिक्स्थ अफेक्टेड है, लेकिन पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, मतलब अगेन हियर मदर इज गोइंग टू बी अ कैरियर. क्लियर. if you didn't get the point, you can ask me in comments. I'll surely reply on that. Now the second question is, the trait is not violent, explain. ये ट्रेट वायलेंट नहीं है, इसे एक्सप्लेन करना है. अगर वायलेंट होता तो फादर से सारे सन्स में इक्वली वो ट्रेट शो होता, सारे सन्स में, बट नहीं हो रहा. सो yes, if it would be a violent, then trait will be passed from father to all of his son, but here affected sons have normal father. Like यहाँ पे ये अफेक्टेड है बट इनके फादर जो है वो नॉर्मल है. अगेन यहाँ पे अफेक्टेड है, फादर नॉर्मल है. तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव को हमने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया, और वाई लिंक्ड क्यों नहीं है ये भी जस्टिफाई कर दिया. नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज, इफ 9th of the third generation, which means this is affected, इसको हमने अफेक्टेड कर दिया like this. Now predict the genotype of the 5th of second generation. अब हमें फीमेल पेरेंट का जीनोटाइप बताना है. उससे पहले हम कुछ और पेरेंट्स एंड प्रोजेनिस की बात कर लेते हैं. फर्स्ट जनरेशन के फर्स्ट पेरेंट कैसे होंगे, इट वुड बी सर्टेनली नॉर्मल. अगर ये अफेक्टेड होते तो यहाँ पे
सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट एंड सिक्स अफेक्टेड नहीं दिखता, बिकॉज एक्स लिंक फादर से सन में नहीं जाएगा। एंड सेकेंड थिंग इज मदर से सन में जा रहा है, मदर इज कैरियर। थर्ड जनरेशन के 5, 6, 7, 8 की बात करें तो ये सारे नॉर्मल है, एंड दिस 9th वन इज कैरियर, क्योंकि यहाँ पे इनकी प्रोजेनी में एक अफेक्टेड इंडिविजुअल है। अगर हम इसको एक साथ देखें, 6th, 9th एंड 9th ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन रिस्पेक्टिवली, फादर से नेक्स्ट जनरेशन में किसी में भी नहीं आया, डॉटर से नेक्स्ट जनरेशन में सन में आया, तो डॉटर क्या है, कैरियर है यहाँ पे, और सन में सन अफेक्टेड है, विच मीन्स ये क्या शो कर रहा है, पूरा का पूरा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, राइट? Hit the like if you didn't know the fact before. Now, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, 9th जनरेशन के थर्ड अफेक्टेड होते, this would be affected if this would be affected, then हमें ये जीनोटाइप प्रिडिक्ट करना है कि फिफ्थ का जीनोटाइप क्या होता। दो सिचुएशंस हो सकती थी, या तो ये कैरियर होता या तो अफेक्टेड होता, तभी डॉटर में आती। लेकिन हमें ऐसी कंडीशन नहीं दी हुई कि ये जो 5, 6, 7, 8 मेल्स है वो भी अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है, राइट? अगर फिफ्थ अफेक्टेड होता तो सारे सन्स में पास होता ये ट्रेट, और सारे सन्स भी अफेक्टेड होते, जैसे कि एक्स अफेक्टेड, एक्स अफेक्टेड, और फादर तो अफेक्टेड है ही, एक्स से अफेक्टेड वाई। नाउ यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशंस में हमें एक्स ए एंड एक्स ए वाई 50-50 मिलता, मीन्स 1:1 रेशियो। लेकिन यहाँ पे जो मेल्स हैं वो अफेक्टेड नहीं है, विच मीन्स अगर हम ये चेक करें कि फिफ्थ अगर कैरियर होती, मेल इज अ कैरियर एंड नेक्स्ट मेल इज अफेक्टेड, ये हम इसको एक को ए ले लेते हैं, राइट? वाई, यहाँ पे क्या बनता, एक्स ए एक्स, डॉटर कैरियर भी हो सकती थी, यहाँ पे डॉटर अफेक्टेड हो गई, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि जीनोटाइप ऑफ 5 in second generation is carrier, right? There are some points, if mother is carrier then son can be affected or can be normal, है ना? तो पहला पॉइंट यहाँ पे प्रूव होता है कि यहाँ पे मदर कैरियर है, लेकिन सन अफेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं। अगर ये वाला हमारे पास जीनोटाइप बना है एक्स ए एंड ये वाला एक्स एंड वाई, अगर एक्स ए और वाई बना तो अफेक्टेड होंगे, और इधर से एक्स ये वाला आ जाता जो अफेक्टेड नहीं है, जो कैरियर नहीं है, जो एक्स कैरियर नहीं है, वो वाला एक्स के साथ वाई मिल जाता, तो ये नॉर्मल मेल्स। यहाँ पे यही हुआ है कि नॉर्मल मेल्स आए हैं कैरियर मदर से। नाउ देयर कैन बी टू अदर सिचुएशंस आल्सो, दैट इफ मदर इज कैरियर देन डॉटर कैन बी अफेक्टेड और कैन बी नॉर्मल। तो यहाँ पे मदर अफेक्टेड, सॉरी डॉटर अफेक्टेड थी और मदर कैरियर। इफ सन इज अफेक्टेड, मदर इज सर्टेनली गोइंग टू बी अ कैरियर। यहाँ पे सन अफेक्टेड है, ये वाले फर्स्ट एंड फोर्थ इन थर्ड जनरेशन, then this mother is carrier. You got the point? Now next question is, give an example of such trait which cause a disorder in human beings, and that can be hemophilia and red green color blindness, muscular dystrophy. These all are the examples of X-linked recessive trait. Now hit like, share, subscribe if you liked it, and next let's move to the another pedigree. Now try this yourself and comment down the trait this pedigree is showing as your homework. So you can take a wild guess which trait is this pedigree showing. Autosomal recessive, dominant,
और वाई लिंक्ड, एक्स लिंक्ड, रिसेसिव, डोमिनेंट। देखते हैं, यहाँ पे जनरेशन स्किप कर दी और फर्स्ट जनरेशन, लेट इट बी फर्स्ट जनरेशन एंड दिस इज सेकेंड, स्किप कर दी, मतलब एक तो ये रिसेसिव होगा कंफर्म। अब एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है या वाई लिंक्ड है। अगर वाई लिंक्ड होता तो यहाँ पे मेल अफेक्टेड होता, बट यहाँ डॉटर अफेक्टेड है, कैंसिल। एक्स लिंक्ड होता तो ट्रेट फादर अफेक्टेड होते और डॉटर कैरियर होती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, फादर अफेक्टेड नहीं है और डॉटर अफेक्टेड है। डॉटर अफेक्टेड होने के लिए फादर को कैरियर होना ही पड़ेगा, और अगर यहाँ पे डॉटर अफेक्टेड है, फादर नहीं है, which means it is autosomal recessive, as the daughter is affected and father is normal. Now हमें दोनों फैमिलीज को एक साथ देखकर ऑब्जर्व करके ट्रेट का पता लगाना है जो दोनों में ही है, बिकॉज अगर हम स्टडी करते हैं तो 2-3 या बहुत सारी फैमिलीज को एक साथ ऑब्जर्व करके विद देयर स्पेसिफिक ट्रेट्स स्टडी की जाती है। सो यस, अगर हम फर्स्ट फैमिली की बात करें और सेकेंड की भी साथ में करनी है, राइट? सो जनरेशन स्किप नहीं हो रही, मीन्स डोमिनेंट है, और रिसेसिव होता तो जनरेशन स्किप होती। और अगर डोमिनेंट एक बार चला जाए जनरेशन से, लाइक ये 4 नंबर वाला, यहाँ पे इसकी जितनी भी प्रोजेनीज बनेंगी वो सारी नॉर्मल होंगी, आगे आने वाली पूरी जनरेशन नॉर्मल होगी, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग इज, ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, राइट, दिस वन, तो ये होमोजाइगस होगा या हेटेरोजाइगस होगा। अगर ये होमोजाइगस होता तो सारे के सारे प्रोजेनीज अफेक्टेड होते, लेकिन यहाँ पे 4th नंबर वाला अनअफेक्टेड है, विच मीन्स 1 नंबर इज heterozygous, this one is heterozygous, and सेकेंड जनरेशन के सेकेंड इंडिविजुअल की बात करें तो ये भी हेटेरोजाइगस है, बिकॉज होमोजाइगस होता तो सारी इंडिविजुअल्स में, सारी प्रोजेनीज में हमें अफेक्टेड ट्रेट शो होता, राइट? नाउ हम ऑटोसोमल या फिर एक्स लिंक इस एक फैमिली को देख के नहीं कह सकते, बिकॉज दो कंट्रास्टिंग सिचुएशंस हमारे पास बनेंगी। पहली ये कि हमें जो ट्रेट है वो मेल और फीमेल में दोनों में इक्वली ऑब्जर्व हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑटोसोमल होगा। लेकिन फिर अगेन देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, एक्स लिंक्ड both the sexes can be affected, so we can't say if it is autosomal or X linked by just observing family 1. Now let's observe the family 2. यहाँ पे 8 नंबर सेकेंड जनरेशन, फादर से डॉटर में ट्रेट पास हो रहा है, डॉटर अफेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है, ऑटोसोमल में मेल एंड फीमेल कैन बी अफेक्टेड विद इक्वल फ्रीक्वेंसीज, बट इन एक्स लिंक्ड father passed the trait on to all the daughters, but here not all the daughters are affected. So we can conclude that it is not X-linked, rather it is autosomal. So this is autosomal dominant. So if you have any doubt, please you can ask me in comment section, and please like, share, subscribe this video. So if you like the video, hit like, share, subscribe, and you can ask your doubts in the comment section, and you can also comment down if you want me to make videos on particular topics you want. Bye bye, thank you.